want to lead and shine. Yes, Good yes. morning, ma'am. दीप्ति आई नहीं है अभी तक. आ गई है. Good Ma'am has morning. आ already गई. come. Yeah. Good कितनी जगह लाइव morning. होना होता है, इधर क्लाउड रिकॉर्डिंग करनी होती है, उधर यूट्यूब लाइव करना होता है. Good All that morning, also do Dipti. simultaneously now. Good morning, Yes. I'm ma'am. so Very omnipresent. good morning. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. As I always say, at 6 Good a.m. this morning, is one ma'am. big party time for everyone. Good Very good morning, morning and ma'am. welcome everyone on the Dipti ma'am, it YouTube. is a Morning. get together, like a get together. Yeah, it is like a get together. It's like a party at 6 o'clock, early morning party. Yes. To get together. Yeah, and to everyone who's appearing for the board exam, I hope you all have told your children जो Dr. Joseph Murphy की किताब में लिखा हुआ था that please reveal Yes, to me all the yes. answers with ease. I remember everything that is asked to me. Thank you so much. I remember all that, the affirmation and the self-talk जो करनी होती है. We studied it in The Power of the Subconscious. We've again studied it in this book also, where this boy who wanted, like to clear his exams with excellent marks, and he also wanted to buy a car. So he did for both of them. And he said that I remember everything, that all the questions were real to me, and I knew the answers to all of them. Thank you to my subconscious mind. It was so wonderful. So he kept telling that to himself and he cleared the exam. So let's utilize that power more and more. I mean, like we have that power within us, divinity ke saath mein jeena. It is like a new way of learning and living life. So that, and all of us bless all the children who are appearing for the boards of 10th. And just take it easy with your children also. Don't sit with a danda and tell them, padhai karo, padhai karo, padhai karo. It is okay agar unko neend aa rahi, it is okay, because mothers and fathers know what to do about the exams of the children. We know that if we write blessings or we write 21 blessings or 100 or whatever, the thank you universe, or do a 555 practice, है ना, और बच्चे वहीं जाते हैं जहाँ उनका मिशन होता है. सो हर इंसान जब धरती पे आता है तो उसका एक पर्पस होता है, वो उस पर्पस को डेफिनेटली फुलफिल करे. दैट इज द मेन एम, एंड दैट for that we need to pray that this person should be able to fulfill the mission with which this person has come. The soul has taken place in my house as my child, my son or my daughter, for something. There's a reason for everyone's advent on this earth, so that's important. ओके, मार्क्स वार्क्स में इतना कुछ कॉम्पिटिटिव होते हैं, आई थिंक मोर बिकॉज लोगों के साथ कन्फर्मिटीज होती हैं, और जो करना है एंड रिजल्ट वो सोचो. आपको बच्चे को सुपर सक्सेसफुल, उसके लिए प्रे कर रहे हो तो उसके लिए प्रे करो, एंड गोल के लिए. कौन से रास्ते से वो सुपर सक्सेसफुल होगा और खुश रहेगा, ये थोड़ा सा यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना बेटर होता है ना. सो ऑल द चिल्ड्रन खूब इजी रहो, घर में इतना खुशी का माहौल रखो. खुशी के माहौल में ही सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, ये बहुत जरूरी होता है. स्ट्रेस करने की हमको जरूरत नहीं है. so, हम जाते हैं अब चैप्टर नंबर 5 पे, मनी, मैजिक मनी. एंड Ma'am, please make me the co-host. या I've not made anyone the co-host. Ma'am, please make... हाँ, I'll just. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. You're always welcome. सारे बच्चे सबके होते हैं. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. So this is day 5, magic money. So what, अगर हमारे पास अभी स्ट्रगल है पैसे का, या पैसा टिकता नहीं है हमारे पास, आता है लेकिन टिकता नहीं है, उसके आने के पहले ही खर्चा हमारा ऑलरेडी स्टैंडिंग होता है कि ठीक है अभी ये खर्चा करना है, ये पैसा आएगा तो ये होगा. या आप पे चेक टू पे चेक अगर कर रहे हो काम, या आपको बहुत ज्यादा हर चीज का प्राइस टैग देखना पड़ता है, या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको उसका अमाउंट देखना पड़ता है, और अमाउंट अगर थोड़ा ज्यादा होता है तो आप उसको खरीद नहीं पाते हो. इसका मतलब पास्ट में कहीं से कुछ आ रहा है, पास्ट में कुछ ऐसा हमने शायद कंप्लेन्स की थी जिसके कारण पैसा अभी खुल के नहीं आ रहा है. सो हमको वापस पास्ट में जाके सारा मनी जो हमारे ऊपर यूज हुआ, मनी सिर्फ एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी दे के हम मनी को थैंक यू जैसे ही बोलते हैं वैसे ही हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है. सो हम पास्ट के पैसे का चैप्टर है ये, टू से थैंक यू टू ऑल द मनी जो हम पे खर्च हुआ है, हमारी पढ़ाई लिखाई पे, हमारे स्कूल एजुकेशन पे, हमारे शूज पे, हमारे कपड़ों पे, हमारे स्वेटर्स पे, हमारे हेयर ऑयल जो लगाया है उस पे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये वो वाला चैप्टर है कि पास में जाके पैसे से हमने जो जो चीजें खरीदी हैं, या किसी ने हमको दी है, या हमारा बर्थडे प्रेजेंट था, या हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है,
हमको ढूंढ ढूंढ के अगेन सोचो कि आप लिटरली निकाल निकाल के ढूंढ रहे हो कि अच्छा हाँ इसमें भी तो पैसे खर्च हुए थे, अच्छा हम वहां वेकेशन के लिए गए थे उसमें खर्च हुए थे, अच्छा हर साल मेरे स्कूल के जूते नए आते थे उसके लिए पैसे खर्च हुए थे, और क्या हुआ था, और इतनी कॉपीज, नोटबुक्स, डायरीज, पेन्स, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्सेस, वो सब खरीदे थे, वाटर बॉटल्स जो खो के आ जाते थे पेरेंट्स को नए खरीदने पड़ते थे, उसके लिए थैंक यू। फिर सर्दियां आती थी, फिर हाफ स्वेटर खरीदना अलग से, फिर फुल स्वेटर खरीदना, उसके ऊपर कोट भी पहनते थे, उसके लिए थैंक यू। फिर वो ट्राइसिकल, बाइसिकल, वो सब जो हम सब के पास थी, आई थिंक साइकिल हम सब के पास थी बचपन में, उसके लिए थैंक यू। और वो जो समोसे और जलेबी और कचौरियां आती थी हमारे लिए, हमको बहुत पसंद थी, उसके लिए थैंक यू। जो टीवी हमने देखा अपने पेरेंट्स के यहाँ, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था क्योंकि बहुत सालों तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, उसके लिए थैंक यू। जो एंटीना ऊपर लगता था उसके लिए थैंक यू। जो कूलर यूज करते थे पहले, बहुत ज्यादा 80s में और 70s में एसी के जमाना नहीं था, कूलर का जमाना होता था, कूलर की जो हवा बहुत अच्छे से हम लोग जिसमें आराम से सोते थे उसके लिए थैंक यू। फिर एसी आए उसके लिए। तो इस तरह हमको आज पास्ट लेन में, मेमोरी लेन में जाना है और खो जाना है उसमें चीजें निकालने में। मतलब सो अगेन जैसे रौनक ने बोला है कि इफ यू डोंट गिव टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड देन योर लाइफ विल नेवर चेंज। सो वी नीड टू गिव टाइम, एटलीस्ट 24 आवर्स के अगर हम 15 मिनट भी निकालते हैं और पास्ट लेन में बचपन में चले जाते हैं, जब हम पैदा हुए थे तो डेफिनेटली हमने बहुत खाना, को याद भी नहीं था 2 साल तक हमने क्या खाना खाया, बट हमको अभी अंदाजा है कि हमने क्या खाया होगा, है ना। सो उन चीजों के लिए थैंक यू बोलना, जो वो सब पैसे से ही तो आई थी, ये करके अगर आप ये प्रैक्टिस कभी भी पास में जाके आप रोज 5 चीजें भी अगर वॉक कर रहे हो और 5 चीजें भी आप सोचो कि अच्छा पेरेंट्स ने या दादी ने या किसी ने आपके लिए पैसे खर्च किए थे, तो आप देखना आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी चेंज होने लग जाएगी। और ग्रैटिट्यूड जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल ग्रैटिट्यूड या सिंगल थैंक यू भी कभी वेस्ट नहीं होता, वो आपके गुड फॉर्च्यून के बॉक्स में चला जाता है और वो उस वक्त रिवील होगा आपको जब आपको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी। आपके पास कहाँ से छप्पर फाड़ के पैसे आने लग जाते हैं, like you had to buy a house or you had to buy a car or you had to buy whatever, like you really wanted to spend money, and then it would just come because एक भी थैंक यू अगर आपने पैसे की फ्रीक्वेंसी या पैसे के लिए किया है तो कभी वेस्ट नहीं होता, वो पैसे में कन्वर्ट होकर आपके घर में आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट दिस मैजिक मनी चैप्टर। सो इसमें मनी के काफी सारे चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है, मैजिक मनी है, फिर चैप्टर 9 मनी मैग्नेट है, फिर उसके बाद 17-18 इज द मैजिक चेक। तो हमारे पास 3 मनी के चैप्टर्स हैं इसमें, और हम पढ़ते हैं इसमें। इमेज देख लेते हैं, फिर विजय जी पढ़ेंगे आज हमारे लिए। Yes, yeah. Thank you. सो ये बैग है पैसे का, तो ये मतलब यूनिवर्स का बैग है, और इसमें से देखो पैसे अभी तक जिप में बंद थे, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स में बहुत पैसा है। कहते हैं ना, यू जस्ट हैव टू पिन इट विथ थैंक यू, मतलब एक बहुत बड़ा बबल है जिसमें पैसे भरे पड़े हैं, उसमें पिन करने की जरूरत है बस हमको, वो पिन थैंक यू से करते हैं हम, और एक दो वो बबल ब्रेक हो जाता है, पंचर हो जाता है, और ये सारा पैसा हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो इसी तरह से ये यूनिवर्स का बैग है, इसमें खूब सारा पैसा भरा हुआ था। हमने इतना थैंक यू बोला है अपने बचपन से लेके अभी तक जाके, और उसकी वजह से वो जिप ही ब्रेक हो जाती है, वो पैसा ओवरफ्लो करने लग जाता है जिंदगी में। दैट्स व्हाट इट इज। सो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। हाँ जी विजय जी, प्लीज स्टार्ट Thank रीडिंग। you. Good morning, everybody. Day 5, Magic Money. Gratitude, I quote, gratitude is riches, complaint is poverty. Yes. Christian Science minimal. If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen.
No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feeling grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Unquote. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words. Thank you for with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you need for the school? Did you go on any vacation when you were a child? What were the most exciting birthday gift you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movie, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential item that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to a hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are, and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money
you don't realize you had. Receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to say it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's enough, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that cost money, you will be truly grateful for it. Each of the circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5. Magic money. Number 1. Repeat step 1, 2, 3 of magic practice number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words. Thank you with all your heart for each instance. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Number 5, take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Vijay ji. Thank Thank you. So complain is poverty and gratitude is riches. So अगर हमको rich बनना है तो हमको gratitude के साथ ही बनना है. This was a quote that was given initially in the first line. Complain is poverty, gratitude is riches. So firstly that, and secondly, सबसे पहले इन्होंने समझाया है रॉन्डा पर्न ने in the initial part that don't have negative feelings towards money. Obviously worry तो होती है अगर कुछ खरीदना है या कोई बिल पे करना है, अभी हमारे पास उसके पैसे नहीं है तो worry होती है. That's very natural. But instead of that, अपने आप को deliberately कहना thank you for all the money that I have, thank you for the money that I've used. You know, so अपनी frequency को change करके रखना ये बहुत जरूरी होता है. Because आप कितनी भी कोशिश कर लो, पैसा आएगा तभी जब आपकी frequency rise होती है. That is जब आप gratitude की frequency में होते हो.
अदरवाइज पैसा आता नहीं है, आएगा लेकिन वो खर्च हो जाएगा। मतलब वो सपोज 1 लाख आए और 1.25 का खर्चा आ जाएगा। सो इस तरह से पैसा आएगा और पैसा जाएगा। सो अगर नेगेटिव थॉट्स रहे हैं पास में, तो सबसे पहले हम पास में जाके हम क्लियर अप करते हैं सारी नेगेटिव एनर्जी। वो हम ग्रैटिट्यूड से ही करेंगे, जो इस चैप्टर का काम है। सो मैजिक मनी चैप्टर में हम सिर्फ पास पे वर्क करते हैं, so that our present becomes very beautiful. और इसमें लिखा हुआ है the abundance of gratitude means the abundance of money that you will be receiving. It is as simple as that. So abundance of gratitude हम करेंगे बैठ के, तो इसीलिए इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है sit down quietly at one place with no disturbance and go back in the memory lane, बचपन में जब पैदा हुए थे, और एक एक चीज को उठा उठा के, अगर आपने कोई व्हीकल आपके घर में थी, स्कूटर, बाइसिकल का जो भी था, उसके लिए थैंक यू। जिसने जो, अगर आइसक्रीम कैंडी भी किसी ने आपको, आपकी दादी ने सपोज दी थी आपको, जो ऑरेंज बार आती थी, वेरी पॉपुलर आइसक्रीम तब, है ना, सो ऑरेंज बार आपको खरीद के दी थी, बिस्किट्स खरीद के दिए थे। इट इज ऑल द सोप्स एंड शैम्पूज दैट वीव यूज्ड, टू द टूथब्रश, टूथपेस्ट मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, जो सारी चीजें, किताब, कॉपी, स्कूल की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, किस बस से आप स्कूल जाते थे, उस बस के पैसे कहाँ से आते थे। तो इस तरह से मूवीज देखने हम लोग हॉल में जाते थे, इट यूज्ड टू बी एन इवेंट, यू नो, लाइक इतना इजी नहीं था, ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिलते तब, लाइन में खड़े होके या जान पहचान निकाल के टिकट्स लेने पड़ते थे। So, but then someone paid for that, right? So that is what. Then birthday parties, I think parents have always celebrated हमारे लिए। खाना घर में ही बनता था और बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, तो वो गिफ्ट पैसे से ही आती थी, तो उसके लिए पैसा। सो इस तरह सोच सोच के यू हैव टू स्क्रैच एंड फाइंड आउट आप किन किन चीजों के लिए थैंक यू बोल सकते हो जब तक आपकी शादी नहीं हुई। शादी में जो एक एक पैसा खर्च हुआ, एक एक गिफ्ट आया, जितना याद आता है उतना निकालोगे। पेरेंट्स ने शादी का ड्रेस दिया, आउटफिट, लहंगा या जो भी आपने साड़ी पहनी थी, वो इतनी एक्सपेंसिव थी, फिर टेलर से सारे वो स्टिचेस करवाना, सारा बहुत सारी चीजें स्टिच करवानी पड़ती है, लॉन्जरी जो आपने आज तक पहनी है, ठीक है, और जो शादी में मिली थी, फिर शादी में जो गिफ्ट्स आए थे, फिर शादी में जिस सैलून से आपने अपना मेकअप कराया था, यू नो, या जो भी परांदा लगाया था, या वो जो आर्टिफिशियल हेयर भी लगाते हैं, बन बनाते हैं, उसके पैसे, who had paid, obviously our parents had paid for that, or whosoever paid, maybe your cousins, chachu or someone, but yeah, everything to do with university के, उसमें हम यूनिवर्सिटी की कैंटीन में खाते थे, यूनिवर्सिटी से हम कितनी मस्ती करने अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, आते जाते कैसे थे आप अपने कॉलेज। सो एवरीथिंग टू डू विथ आवर लाइफ, जो छोटी छोटी चीजें, अगर आप कहीं पे जाते थे कुछ अच्छा स्पेशलाइज से पिज्जा खाने के लिए, या कहीं पे डोसा का आउटलेट बहुत अच्छा था एंड यू वर a repeat customer there, so we were not earning that time in school and college, but हम रेस्टोरेंट में जाते थे, फिर वेकेशंस पे जाते थे अलग अलग जगह पे। तो वो सारी चीजें हमको याद कर करके आज मन में सोचनी है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप प्रैक्टिस है जैसे बताई हुई है, बिकॉज बेसिकली हम इसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अभी तक वरी, हो सकता है एनवियस भी होंगे कि किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है, हो सकता है ना। एंड कई बार ऐसे होता है, कोई अच्छा इंसान नहीं होता है तो हमें लगता है उसके पास देखो कितना पैसा आता जा रहा है, और वो मतलब एवरी बाय डे एंड नाइट दैट पर्सन इज प्रोग्रेसिंग एंड यू नो लाइक मिंटिंग मनी और व्हाटएवर। सो कई बार उस तरह के थॉट्स भी आ जाते हैं कि इज नॉट अ नाइस पर्सन, स्टिल ही इज डूइंग इट। या हमने हो सकता है कि किसी को गलत फील कराया हो पैसे को लेके, है ना, मतलब किसी को कहा हो दैट नो नो दिस इज टू एक्सपेंसिव, दिस इज नॉट, यू वोंट बी एबल टू डू इट और समथिंग लाइक दैट। हमें पता नहीं है, हम एक्चुअली थॉट्स में या वर्ड्स में, इसमें यही लिखा हुआ है ना, दैट चाहे आपने थॉट्स में या वर्ड्स में कभी भी नेगेटिव फीलिंग होल्ड की हो पैसे को लेके, वरी तो हमने बहुत की है ना, बचपन से लेके अभी तक वरी फैक्टर फीमेल्स में बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब मेल्स में भी आता है, यू नो, बिकॉज दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली। सो वो आया है, जेलसी पता नहीं आई है कि नहीं आई है, फियर आया है कि पैसा कहीं चला तो नहीं जाएगा। कोई भी होल्ड ऑन टू अगर पैसे को करता है ना, जो खर्च करने में हम संकोच करते हैं, हम नॉट आई वुड से कंजूसी, बट पैसे को होल्ड करके रखते हैं, नहीं बहुत आराम से खुले हाथ से जाने नहीं देते, इसका मतलब है फियर है, फियर ऑफ द फ्यूचर। इसका मतलब अभी भी सबकॉन्शियस माइंड पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पैसा जितना खर्चा करते हैं उतना ही वापस आता है।
और जिस फ्रीक्वेंसी में खर्च करते हैं उससे मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी में वापस आता है, मल्टीप्लाइड अमाउंट्स में वापस आता है। पैसे को टिक के रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे को सेलिब्रेट होना, पैसे को खर्चा होना, पैसे से आप शॉपिंग करो, पैसा आप किसी को दो, पैसे से एंजॉय करो, ऐसी ऐसी चीजें करो जो आपके दिल में बहुत खुशी मिलती हो पैसे से। When you keep doing that, you will see that your money will start multiplying because money frequency बिल्कुल टिक के नहीं रहना चाहती है। अगर आप जबरदस्ती टिकाने की कोशिश कर रहे हो उसको, तो वो जाने का रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि उसकी तासीर ही मोबाइल होती है, मोबिलिटी। पैसे की तासीर मोबिलिटी होती है। दैट मीन्स money is meant to be moving, circulating. We call it money always circulates. So money will circulate. It will go away from you. If you try to hold on to money and you think that, okay, I need this, but I'm just like not doing it. Or if you want to buy something for someone and with कंजूसी you're buying, like, oh, पैसे बचा लो यहाँ से। पैसे को पता है कि मुझे इसकी जिंदगी से कैसे निकलना है, क्योंकि पैसा टिके रह ही नहीं सकता। पैसा आया है तो उसको खर्च होने की जरूरत है, वो होता ही वैसा है, उसकी प्रॉपर्टी है। कहते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो इसी तरह से वो प्रॉपर्टी होती है ना एनर्जी की, इट कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वैसे ही मनी cannot stay at one place, it has to move around, and circulation का मतलब होता है it is coming back also, no? So more you're spending and more I understood this concept so late in my life, but ever since I've understood, I've become so khula haath, when it comes to spending money with a lot of respect for things that I really love, and giving a lot of money as well. I mean, I keep giving to people, कभी हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ होते हैं ऑफिस में, इधर उधर कहीं पे भी, और बहुत प्यार से आई गिव ऑल द मनी, इतना ब्लेस करके कि इनको कभी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़े। सो दिस इज व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, तो इसका मतलब है हम रिप्रोग्राम हो गए सबकॉन्शियस माइंड में। और ये बहुत मुश्किल स्टेप होता है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, लाइक खुले हाथ से पैसा खर्च करना विद योर राइट हैंड, जस्ट कीप डूइंग इट, यू विल सी, बिकॉज किस एनर्जी में वो पैसा जा रहा है उसमें वो मल्टीप्लाई होके वापस आ जाएगा वैसे भी। ठीक है, सो इसके लिए आप देखोगे कि जब पास्ट में हम इतना सारा ग्रैटिट्यूड करते हैं, और रोज जब खाली हो तो अच्छी अच्छी चीजें सोचो पास्ट की। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, बिकॉज पता नहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या रखा हुआ है और वो सीमेंट हो गया है। ऐसे थॉट्स दैट पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिलीव मी। ठीक है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पैसा फ्रीक्वेंसी से आता है। ऐसे भी लोग हैं जो 2 घंटा काम करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है दैट पैसा उनकी जिंदगी में बहुत आराम से आता है। सो आज का 2 स्टेप प्रैक्टिस है। फर्स्ट इज दैट हमको एक जगह क्वाइटली बैठ के पैसे के लिए बचपन से लेके जब तक शादी नहीं हुई, अगर शादी हो चुकी है तो, और नहीं भी हुई है तो, मतलब जब हम अडल्टहुड में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, तब तक जितना भी पैसा कहीं इधर उधर से आया या कोई चीज आई है या आपने जो भी वेकेशंस किए, जो पैसे से जो चीजें आई है, उसके लिए हमको बैठ के थैंक यू बोलना है दिल से। और जितना याद कर सकते हो उतना याद करो। अगर आपके बाथरूम में गीजर लगा हुआ था, कभी गीजर लगा होता है, फिर पहले एक इमर्जन रॉड आती थी जिससे पानी गर्म होता था, क्योंकि बहुत गीजर का जमाना नहीं था, अगेन बहुत बहुत छोटे थे तब नहीं था। जिस घर में रहते थे, जो बिजली यूज की है, वो सब हमारे लिए तो फ्री में ही थी ना, हम वी यूज्ड इट। वो ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने या किसी ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने पैसे उसके दिए थे, पर हमने हमारे लिए तो, हमने तो सोचा नहीं था पैसे के बारे में। वी वर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दैट टाइम, बट वी वर यूजिंग मनी लाइक एनीथिंग। एक्चुअली अगर सोचो कि वो क्रोर्स में गया होगा हमारा पैसा, जितना ज्यादा, मतलब शादी वादी करके मिला के वो क्रोर्स में गया होगा पैसा, और हमने इतना भरपूर इंजॉय किया है, सब कुछ किया है, और हमने कभी थैंक यू नहीं बोला। सो आज वाला चैप्टर से पास में जाके थैंक यू बोलने का। जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, हमारी शादी नहीं हो गई, दोनों में से एक चीज, तब तक आपने जो जो पैसे से यूज किया है, जो चीज, उनके लिए हमको आज थैंक यू बोलना है। तो जब ये बोल लिया, अब इस वाली एक्सरसाइज में बैठ के सोचने में आई थिंक 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट्स और 10 मिनट्स, इतना लगेगा। अब ये करने के बाद अब हमको नोट लेना है। अगर आप पिछली बार भी प्रैक्टिस आपने ये वाला किया हुआ है, तो फिर आपको दोबारा वो वाला नोट आप प्लीज किसी को दे दीजिए। बहुत सारी उसमें वैसे भी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो जिसके घर में भी जाएगा, जिसके वॉलेट में जाएगा, उसकी वैसे भी बहुत लाइक फाइनेंशियल सक्सेस होगी, क्योंकि उस जो हमने पिछले पिछले महीने बनाया था, बिकॉज मैजिक बुक वी डू एवरी टाइम।
Okay, so don't use the same note again. Take another 10 rupees, 50 rupees, 100 rupees. कितना amount ले रहे हो note का, that really doesn't matter. It is the gratitude that you're giving. The amount of gratitude matters, not the amount of, like the amount of money that you're taking, like 10 rupees, 200 rupees, 500 rupees. That really doesn't matter. Just take whatever. If you're taking a 10 rupee note also, or a 50 or a 100, जस्ट टेक दैट, और नोट के ही साइज का एक वाइट कलर का पेपर आपको काटना है अलग से, जितना नोट का साइज होता है एग्जैक्टली उसी साइज का। और सामने की तरफ जहाँ पे, अगर आप यूएस में रहते हो तो जहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो होती है, या इंडियन हो तो जहाँ गांधी जी की फोटो होती है, उस साइड पे जो फ्रंट साइड होता है, बिकॉज नोट का एक बैक साइड होता है, फ्रंट साइड होता है, सो फ्रंट साइड पे हमको वो पेपर चिपकाना है ग्लू स्टिक से, ठीक है। और उस पे लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और उस नोट को हमको उठा के जब लिख लिया, पेस्ट कर लिया, उसको हमें हाथ में लेके बहुत सारा थैंक यू फील करना है टू पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कजिन्स, एवरीवन, जिन्होंने हमको कभी पैसे से कोई चीज इंजॉय कराई हो, दैट वे, ठीक है। और ये वाला जो है, इसको दिन में 2 बार, और दैट मीन्स टोटल 3 हो जाएगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस होल एक्सरसाइज इज टू क्रिएट मोर मनी इनटू आवर लाइव्स। सो वी हैव डन दैट वंस इन द मॉर्निंग, थैंक यू बोला, नोट के ऊपर हमने व्हाइट स्लिप चिपकाई, हमने थैंक यू बोला। अब दिन में 2 बार, और एक बार सुबह, एक बार शाम को, हमको वो नोट उठा के उसको पढ़ना है और बस दिल में थैंक यू फील करना है, दैट्स इट। Okay, so this is the practice for today. And other than this, morning may count my blessings है, जिसमें हम we are digging out more things that we can be grateful for. और रात को magic rock practice, that we hold that rock in our hand and we दिल से figure out क्या क्या चीजें आज हुई, ये हुआ, thank you so much, वो हुआ, thank you so much, यार ये था, थैंक यू सो मच, और फिर उसमें से बेस्ट चीज कौन सी थी, उसके लिए थैंक यू बोलना। Okay, so this is the practice for today. And now we go to the other book, which is Telepsychic. I'm just loving this book so much, and I'm using more and more. So yesterday, I want to share with you yesterday whatever we had studied, from this book. So when I was at office yesterday, there was someone, a girl who lost her cell phone, and वो पहले बात, so of course Jigyasa is there on call with us, so she would also know. आपका सिग्नल की आवाज कम आ रही है कि मुझे ही कम आ रही है? मैम, is there a signal problem with your end, or am I? No, it's very The voice clear. is perfect. The voice is perfect. It's not your, ma'am. Poonam ma'am. हाँ, वो हो सकता है। So yesterday in office, this girl lost her cell phone, and फिर उसके बाद जिज्ञासा ने बताया कि उस लड़की का सेल फोन, मैंने कहा कहाँ रखा था, कहती है उसने किचन में जाके रखा था, बिकॉज इट वाज लंच टाइम, हम लोग भी खाना खा रहे थे, एंड वी वर 5 of us sitting in the office and having our lunch together. So उसके थोड़ी देर के बाद वो जिसका फोन खोया था, वो रोते रोते वहां पे आ गई, एंड like not looking very well off, monetarily, और वो रो रही है और कह रही है मेरा फोन मैंने परसों ही खरीदा था, और बहुत मुश्किल से, और ऐसा था वैसा था। तो आई डिडंट वांट, मुझे ये पता था कि टेलीसाइकिक एंड हेटेरो सजेशन नॉर्मली क्या होता है, सबके वरीड थॉट्स होते हैं ऐसे में कि ओ गॉड उसका सेल खो गया, उसने परसों ही लिया था और इतना रो रही है। I did not change my frequency, and I was just talking to my subconscious mind and imagining that she's got her cell phone, and पूरा office को मैंने एक golden dust से, because someone could have taken it obviously with a not good intention. Obviously किसी ने लिया ही था ना, क्योंकि वो किचन के स्लैब में, जो ऑफिस में जो पैंट्री एरिया होता है, उसके किचन के स्लैब पे रख के she said मैंने वहां रखा था। So then for a moment, खाना खाते खाते, I thought, because normally क्या होता है, worried thoughts and feeling bad about someone, मतलब as a compassionate person आपको बुरा लगता है कि oh God इसका सेल फोन खो गया। I was like, अरे इसका सेल फोन मिल गया, and she is very happy. और जिज्ञासा ने मुझे आके बताया था कि उस पर्सन का एक स्टूडेंट है, उसका सेल फोन खो गया है, और ऐसे ऐसे। तो मैंने मन में जिज्ञासा की आवाज, उसकी तो आवाज मुझे पता ही है, she is someone very close to my heart वैसे भी। So
मुझे जिज्ञासा की आवाज में ही मैं अपने आप को खाना खाते खाते मैंने इमेजिन किया दैट जिज्ञासा आके अभी बता रही है दैट उसका फोन मिल गया एंड यू विल नॉट बिलीव 5 मिनट में उसने आके बताया। मतलब पहले तो वो स्टूडेंट आई और वो यहाँ पे क्योंकि वो जो हेड है ऑफिस के वहां बैठ उनके साथ हम खाना खा रहे थे तो वो कंप्लेन करने आई थी देखो मैम मेरा फोन खो गया और ये वो रो रही है बेचारी एंड शी वाज लाइक 40s में होगी दैट स्टूडेंट and इस तरह से so I just gave very good thoughts and you know like just close my eyes and imagine that she's coming and telling us that फोन जिज्ञासा बोल रही है कि फोन मिल गया उसका फोन मिल गया और वहीं कहीं था तो जो भी था बट उसके पहले मैंने पूरे ऑफिस को एक गोल्डन डस्ट और गोल्डन ह्यू में कलर किया था बिकॉज अगर किसी ने उसका फोन लिया था तो उस पर्सन को भी इतनी विजडम आ जाएगी ना बिकॉज पूरा ही ऑफिस करेंगे कि उसने सपोज किसी और लैब में रखा हुआ था हमारे अलग अलग लैब्स होते हैं ऑफिस में बिकॉज वी आर इनटू एजुकेशन तो मुझे ये पता था कि उसने किसी ने किसी लैब में ही रखा होगा जिसने लिया है तो उस पर्सन को भी जिसने दिया है उसको खूब सारा प्यार दिया मन में ठीक है और वो पूरा उसके थोड़ी देर के बाद जिज्ञासा comes and tells exactly उसी शब्द में even she doesn't know because I was so busy that I didn't even tell her about this and she came and said that फोन मिल गया वो वहीं पीछे की तरफ वो गैस का जो वो होता है बर्नर्स उसके पीछे रखा हुआ था और वो है जबकि वो पूरे टाइम बिजी था क्योंकि जब फोन कर रहे थे जब उस नंबर पे फोन डायल कर रहे थे हम लोग तो वो बिजी आ रहा था और वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था इसका मतलब है दैट किसी ने उसको लिया था बट सी द पावर ऑफ टेलीसाइकिक एंड हेट्रो सजेशन एंड विजुअलाइजेशन ने 5 मिनट में वो जो पर्सन था क्योंकि मैंने उस पर्सन को बहुत प्यार दिया था इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट दिस पर्सन जिसका फोन खोया था जिसने फोन लिया था और उसके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग किया था एंड दैट पर्सन वेंट एंड केप्ट द फोन देयर ऑब्वियसली समवन हैड टेकन इट बिकॉज इट वाज नॉट देयर इन द किचन ऐसी कोई इतनी बड़ी किचन भी नहीं है और वो स्लैब भी पूरा ही खाली रहता है उस पर कोई सामान नहीं होता सो उस पे जाके रखा एंड एवरीथिंग टर्न्ड अराउंड सो दिस इज द पावर वी ऑल हैव यू नो वी वुडंट हैव डन दिस अगर ये किताबें हमारी जिंदगी में नहीं आती हम वरीड होते और हम बस ऐसे सोचते काश इसका फोन मिल जाए हो आई एम फीलिंग सो बैड इसका नया फोन तीसरा दिन था वो खो गया है ना बट इंस्टेड ऑफ दैट वो लव फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है ऐसी सिचुएशन में सो दैट देयर इज अ परफेक्ट रेजोल्यूशन एंड गिविंग लव टू द पर्सन हु स्टोलन इट okay this turns around and this is how I had got my money back also by giving blessings and giving a lot of love to the person who stole my 2 lakh rupees and I got it back not even it didn't take in fact it took exactly yeah I mean like 14 को ही हुआ था ये और या exactly 14 January को मुझे मिल गया 14 December to 14 January so this is how these book empowers us and says that you know जैसे अब we were just planning to make a trip sometime to go somewhere in March. So then I yesterday, you know, like this, just before sleeping, I spoke to the universe, to my subconscious mind. I said that I'm making you my travel agent. Just plan it up. And I know when you're planning, I don't need to tell you that वो बहुत fun होना चाहिए, बहुत laughter होना चाहिए, बहुत ease होना चाहिए, बहुत comfort होना चाहिए, you know, exploring amazing things होना चाहिए. मैंने कहा, you know all of that, that what I love. So I want a trip and I want you to be the travel agent. Please reveal to me that how is it happening, what's happening, and I'm good to go with it. You know, so this is the power that we have, and let's use it more and more. Yeah. So let's. Yeah, Shivani, you're reading for us. Yeah, good morning. The dream is its own interpretation. Your dream is personal to you, and the same symbols that you receive when they appear in someone else's mind may have an entirely different meaning. Your subconscious speaks to you symbolically in dreams. An ancient Hebrew mystic said that at night, the wife, the subconscious, talks back to her husband, the conscious mind, and sometimes tells him in no uncertain terms that he has been polluting her with negative thoughts, fears, and destructive emotions. Oh, this is so sweet. इन्होंने कहा कि एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो होता ही है ना कि वो देख रहा है कि ओ इस रूम में येलो लाइट्स हैं ओके रेड वो है there's a chandelier up there you know I'm sitting on a yellow colored sofa that's conscious mind subconscious is life word happiness joy growth progress money तो उन्होंने बोला है कि वो subconscious mind है वो वाइफ है
और जो कॉन्शियस माइंड है वो हस्बैंड है। तो उन्होंने बोला है कि ड्रीम्स में सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करता है और कहता है खबरदार जो मेरे अंदर फियर डाला, कोई जरूरत नहीं है फियर डालने की, ठीक है। तो इसके कारण ड्रीम्स कई बार आती है, तो वो सबकॉन्शियस कॉन्शियस से कम्युनिकेट कर रहा होता है रात को इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स और सिंबल्स और whatever, which is okay. So you don't have to dwell in it and say that अरे मुझे ये ड्रीम आई, अच्छी है क्या बुरी है क्या। ये हमारे माइंड के अंदर के हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही होती है, तो हमारे लिए नहीं होती है। हाँ जी। How telepsychics warned her and she cancelled her wedding plans. A young woman who was engaged to a man she had promised to marry came to me for consultation. She said that she didn't know why, but that she was deeply troubled and felt depressed. She wanted to withdraw from the engagement, but didn't want to hurt the young man's feelings. The best time to prevent a divorce is before marriage. During the course of our discussion, she said that she had experienced a recurrent dream for 10 consecutive nights in which a man with a long beard pointed to the Star of David, a figure consisting of a six-pointed star which serves as a symbol of Judaism. I asked her what the dream meant to her, as the Talmud said, every dream has its own interpretation. She responded by saying that she no longer attended the synagogue. She used to read and study the Psalms of David, but the man to whom she was betrothed was an atheist who ridiculed all religious beliefs. I explained to her that the law of the subconscious is self-preservation, and undoubtedly it was trying to protect her by the symbolic dramatization of the Star of David, and that her own intuition would reveal the correctness of the interpretation, as the symbol had to ring a bell in her own heart. She broke off the engagement, and the recurrent dream ceased at once. She had a profound sense of peace. She went back to the synagogue and renewed her interpretations and meditations of the Psalms of David, and prayed that infinite intelligence would attract a man who harmonized with her in every way and who had a deep reverence for the God presence within all people. She has since married a rabbinical student and is quite contented. She looked upon her recurrent dream as a warning, which undoubtedly it was. The Bible says, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. From Matthew chapter 2, verse 12. Yeah, so this is a little experience about this female जिसकी engagement हो चुकी थी एक आदमी से, और लेकिन उसको लगातार एक मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी जो होती है being attracted to another man and feeling happy being with him. So वो बार बार अपने आप से वो पूछती थी, she was not sure और कि वो उससे शादी करे, because वो होता है ना that mushy feeling has to be there when you are like getting married. तो उसको वो बिल्कुल नहीं था, बार बार तो वो सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। दैट वाज आल्सो बिकॉज वो लड़का थोड़ा लोगों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल था, मतलब एथिस्ट था, एथिस्ट इन द सेंस कि रिलीजियस बिलीव्स, बट ही डिडंट इवन रिस्पेक्ट दैट गॉड इन पीपल। कहते हैं ना हर इंसान में एक भगवान होता है, तो आपको एक दूसरे के साथ एक कंपैशन के साथ प्यार के साथ डील करना होता है। She didn't find all that in that man. Okay, so उसको उसका बिहेवियर कभी अच्छा नहीं लगता था या कुछ ऐसी चीज जो होती थी, तो उसका दिल नहीं था। She was not sure कि मुझे इस आदमी से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, and she didn't find him a nice person basically. So then plus उसको लगातार 10 दिन ड्रीम्स में ना एक स्टार आया जिसके 6 एजेस होते हैं, जैसे स्टार हम बनाते हैं, तो वो बार बार वो स्टार आ रहा था। तो स्टार ऑफ डेविड मतलब इट इज ऑल रिटन, ये बाइबल से है, क्योंकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक पास्टर थे चर्च में बहुत सालों तक, उसके बाद उन्होंने ये बुक्स लिखना और ये सब शुरू किया था और प्रीच करने के लिए, पहले वो पास्टर ही थे, तो इसीलिए इसमें बाइबल के बहुत रेफरेंसेस है।
सो वो लड़की को समझ में नहीं आया। फिर उसने जाके अपने स्पिरिचुअल टीचर से बात की कि क्यों मुझे ऐसी ड्रीम्स आती हैं, बार बार ऐसे स्टार दिख रहा है। तो दैट मीन्स अपने मन में, मतलब उन्होंने ये बताया कि अपने मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप ये पूछो कि स्टार स्टार अगर बार बार नजर आ रहा है, मतलब यू हैव दैट स्टार, वी हैव दैट कैपेसिटी टू आस्क द सबकॉन्शियस माइंड। उसने अपने आप से पूछा दैट शुड शी गेट मैरिड और नॉट, बट देन उसको हमेशा आंसर नेगेटिव आया। उसको कभी, मतलब वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं आई उस शादी को लेकर, एंड शी कॉल्ड ऑफ दैट मैरिज। उसके बाद फाइनली उसने अपने सबकॉन्शियस को कहा दैट प्लीज ब्रिंग अ मैन टू मी जो अपने आप को रिस्पेक्ट करे और हर एक इंसान में भगवान देखे। मतलब एक अच्छे इंसान को मेरी जिंदगी में लेके आओ शादी करने के लिए, जिसके साथ मैं बहुत खुश हूं और जो सबको रिस्पेक्ट करे। लव एंड रिस्पेक्ट हैज टू बी द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप। अगर लव एंड रिस्पेक्ट नहीं है एज अ फाउंडेशन, तो वो रिलेशनशिप वैसे भी सर्वाइव नहीं करेगी, और सर्वाइव थ्राइव तो खैर बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है। So this is the fundamental, that there has to be a love and respect in every relationship, है ना। कोई constantly misbehave कर रहा है, इसका मतलब है वो रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसने इसीलिए पुरानी शादी तोड़ दी थी, मतलब शादी नहीं हुई थी अभी, उसकी शादी होने वाली थी जस्ट। एंड तो उसने दूसरा एक पार्टनर, बहुत अच्छा सा पार्टनर के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दिए that subconscious mind, please bring a man who God fearing, मतलब जो अपने अंदर के भगवान को और दूसरों को इज्जत रिस्पेक्ट दे बहुत ज्यादा, and is a nice person. And finally she met somebody और उसके साथ में उसकी शादी हुई, and that is how it was. So आप ऐसी चीजें भी पूछ सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से, क्लैरिटी लेना, that is। हाँ जी। How telepsychic solved a man's agonizing problem. A man from New York flew out to Beverly Hills to interview me. He said that he had been married for 6 years to a woman from Los Angeles. She had mentioned to him from time to time that she used to listen to my lectures on mental and spiritual laws. However, suddenly, about a year ago, she had disappeared from their home, leaving no note or explanation. He thought she might be a member of my organization. However, I had no knowledge of her whereabouts. In fact, her name was not on our mailing list. He had misappropriated funds, which she had given him to the extent of $60,000. He felt guilty about it and wanted to make amends. In the meantime, he had become the heir to his mother's estate and was in a position to repay the money to his wife. He felt that to be the reason she had walked out. Detectives failed to find her, and her relatives had no clue. He said to me, I don't know why I came to you, but I have a hunch that she might come to see you. I'm leaving $10,000 with you with her name on it. And if she comes, give it to her and ask her to get in touch with me. I love her and want her back. He added, be sure to tell her of my inheritance. I promised to keep in touch with him and let him know if she contacted me. Nothing happened as 2 months passed. Then a woman phoned from San Francisco saying to my secretary that it was extremely urgent and important that she see me and that she was flying down to Beverly Hills that morning. I saw this woman in the evening and she unfolded a most amazing drama of the mind. A few nights before, she said, I had appeared to her in a dream and told her that I had a sum of money for her, that all of her money that her husband had misused was waiting for her when she returned home to New York. This, she said, is why she was here. The dream, she said, was so vivid, so realistic, that it was like a vision. The room was full of light and she felt ecstatic. She said to me, you read from the Bible. And she said, you read from the Bible. And she said, she heard my voice saying, quote, in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed. Then he opened
the ears of men and sealeth their instructions. From Job, chapter 33, verses 15 and 16. I had no recollection of the woman and did not recall ever meeting her. However, one night I turned a request over to my subconscious as follows. Infinite intelligence knows where Mrs. X is and reveals her whereabouts to me. She contacts me in divine order. It is God in action. I gave her the $10,000 and she flew back to New York to join her husband. She told me she had left because of his lies to her and because he had squandered all her money. She had been praying for guidance and divine right action. Apparently, my prayer was resurrected as an answer to her problems, and her subconscious projected an image of the author with the message that answered her prayer. Yeah, long experience, but then in a nutshell it says कि एक बार एक woman थी, wife, ठीक है, वो suddenly disappear हो गई थी. हस्बैंड बहुत परेशान हो रहा था कि वो कहाँ चली गई है ऐसे एकदम से घर छोड़ के. तो हस्बैंड को ये पता था कि वो डॉक्टर मर्फी के सारे रेडियो के प्रोग्राम सुनती है रेगुलर बेसिस पे और उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है अपनी जिंदगी में. एंड सडनली वो डिसअपियर हो गई. तो उसको ये बहुत श्योर था कि वो जरूर डॉक्टर मर्फी से मिलने गई होगी बिकॉज वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी. आई मीन लाइक शी वाज रेगुलर लिसनिंग टू हिज रेडियो प्रोग्राम्स एंड ऑल. मिली नहीं थी वो कभी भी. तो हस्बैंड को यही लगा कि वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिलने गई है. और फिर उसने अपने बारे में उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को कांटेक्ट किया और पूछा कि मेरी वाइफ इस तरह की पर्सन आपके पास आई थी क्या कोई बेवर्ली हिल्स से. मतलब ये लोग यूएस में रहते थे. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ब्रिटिशर हैं लेकिन वो ट्रैवल करते थे अराउंड द वर्ल्ड प्रीचिंग्स के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए. तो उसने पूछा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी से पूछा हस्बैंड ने कि मेरी वाइफ आई थी क्या आपसे मिलने. उन्होंने पूछा कैसी है क्या है, तो उनको ऐसी कोई वुमेन याद ही नहीं आ रही थी कि कोई ऐसी फीमेल आई हो मुझसे मिलने के लिए. फिर उसने हस्बैंड ने फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बताया कि वो पता नहीं बहुत दिनों से मिल ही नहीं रही है, बहुत ढूंढा. इसने डिटेक्टिव भी हायर किया हस्बैंड ने. डिटेक्टिव भी नहीं ढूंढ पाया कि कहाँ उसकी बीवी गई है. तो उसने फिर बताया डॉक्टर जोसेफ मर्फी को कि एक्चुअली वो मैं पैसे बहुत मिसयूज करता था. तो बाद में पता लगा कि वाइफ ने जब बताया, जब वाइफ फाइनली आई डॉक्टर जोसेफ मर्फी से बात करने के लिए, तो उसने खुद ही बताया कि मैं बहुत पैसे का मिस अप्रोप्रिएट यूज करता था. तो जो भी वो करता था वो इसमें डिटेल्स नहीं है, बट हाँ वो उससे झूठ बोलता था, वो पैसे को मिसयूज करता था और उसको इस तरह से चीट करता था. ऑब्वियसली किसी भी वाइफ को पसंद नहीं आएगा ये. तो उसकी वाइफ फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टे विथ हिम और वो उसको छोड़ के चली गई, हस्बैंड को छोड़ के चली गई. रहती वो अमेरिका में ही थी. अब डिटेक्टिव्स भी नहीं ढूंढ पाए, जो भी हुआ. तो फाइनली ये हस्बैंड जब गया डॉक्टर जोसेफ मर्फी से पूछने के लिए कि आपके पास मेरी वाइफ आई है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं आई है. तो उसने इस बीच क्या हुआ था कि हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली थी और वो बहुत पैसे वाला हो गया था. और उसमें से $10,000 उस जमाने के, ये सारी 40s 50s की कहानी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के और ये सारे एक्सपीरियंस 1940s एंड 50s. उस वक्त $10,000 की आप वैल्यू आज समझ सकते हो, ठीक है. तो उस वक्त वो $10,000 लेके दिस पर्सन वेंट और डॉक्टर जोसेफ मर्फी को उसने दे दिए और कहा कि देखो ये मेरी वाइफ आपके पास जरूर आएगी क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा फॉलो करती है. तो वो जब भी आए आप ये वाला पैसा उसको दे देना और उसको कहना दैट आई लव हर एंड आई वांट टू बी विथ हर एंड आई डोंट वांट टू लूज हर. मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और वो वापस घर आ जाए और अब सब अच्छे से होगा. और उसको ये भी बता देना कि मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी और पैसा जो भी है इनहेरिट कर लिया है, मेरे पास अब बहुत पैसा आ गया है और ये पैसे आप उसको दे देना, वापस कर देना. तो जितने भी पैसे उसने मिसयूज किए थे शायद इतने ही होते होंगे, $10,000 तो बहुत ज्यादा है उस जमाना 1940 के हिसाब से, बहुत ज्यादा है. आज भी बहुत ज्यादा है $10,000, है ना. तो वो वाला पैसा दे के आया और कह के आया मेरी वाइफ को बोल देना आपकी ऐसा ऐसा है क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट में जरूर आएगी. अब डॉक्टर जोसेफ मर्फी के साइड की स्टोरी ये थी कि जैसे ही वो आदमी गया, हस्बैंड वापस चला गया वो बात करके और वो पैसे देके डॉक्टर जोसेफ मर्फी को, उन्होंने वो पैसे रख लिए और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहा दैट टू द डिवाइन इंटेलिजेंस ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड
प्लीज रिवील टू मी मिसेस एक्स कहाँ पर है, और उनको मेरे पास लेके आए है, ठीक है, बाय द डिवाइन ऑर्डर। एंड ये उन्होंने अपने आप को बोला। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अब प्रैक्टिस की, बिकॉज ऑब्वियसली ही ऑल्सो वांटेड ना कि सब अच्छे से रिजॉल्व हो जाए। उसके कुछ दिनों के बाद ही उस फीमेल का फोन इनके सेक्रेटरी डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सेक्रेटरी के पास आया, जिसमें उस फीमेल ने उनको बताया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और ऐसा है वो भी है, और ये वही वाली औरत थी। तो शी गॉट इन टच विद डॉक्टर मर्फी। फिर फाइनली ये मिलने आई, डॉक्टर मर्फी ने उसको पैसे दे दिए $10,000 और बता दिया अपने हस्बैंड के बारे में, और फिर वो वापस चली गई। सो दिस इज व्हाट इट सेज, दैट ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का ही वो था। और वो फीमेल कहती है कि मुझे ड्रीम्स में आप आए थे। मतलब वो फीमेल ने क्यों कांटेक्ट किया डॉक्टर जोसेफ मर्फी को, क्योंकि उस फीमेल को जो वाइफ थी उसको सपने में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक वर्स बाइबल की रिवील की थी, और ये कहा था कि मेरे पास तुम्हारे $10,000 रखे हुए हैं, तुम आके मुझसे ले लो। और ये इतनी क्रिस्टल क्लियर ड्रीम थी कि वाइफ ने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे आंखों के सामने ये हकीकत हो रही है, ये सपना नहीं लग रहा था, मतलब इट वॉज सो रियल। सो इसलिए उसने फोन किया था, है ना, अंदर से कभी कभी कॉलिंग आती है कि काम कर लो, बिकॉज वो भी सबकॉन्शियस से बहुत कनेक्ट होती हो, मतलब हो ही गई होगी ना इतने सालों से डॉक्टर जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स को प्रैक्टिस कर करके। तो यही वो होता है दैट यू नो व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हर बात का जवाब होता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर के हिसाब से एवरीथिंग इज ग्रोथ, progress, victory, prosperity, abundance, love, joy, laughter, amazing health, beautiful relationships, etc. etc. सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस, बिकॉज हमने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में भी पढ़ा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लाइफ वर्ड होता है, सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस होती है उसमें। तो जब हम उस पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, यू नो इट इज लिटरली लाइक अगर आप सन से कनेक्ट हो जाओ, सूरज से, तो क्या आपकी जिंदगी में कभी रोशनी कम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, बिकॉज आप जितना लोगे उतना आपको और मिलता जाएगा। फिर आपने लिया, कंज्यूम कर लिया, फिर आप ले लो, मतलब एक पाइप लगा लो आप यूनिवर्सल के फोर्स से, यूनिवर्स फोर्स से, है ना। जैसे अगर आप समुद्र से पानी लेना शुरू कर दो, तो क्या आपके पास कभी कमी होगी पानी की? बिकॉज आपने कनेक्शन ही सी से कर दिया है, वो ओशन से पानी आ रहा है और आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली, जब आप सबकॉन्शियस के रिजर्वॉयर, यही समझाया हुआ था शुरू में डॉक्टर मर्फी ने, सबकॉन्शियस माइंड एक रेजर्वॉयर है। रेजर्वॉयर मतलब एक बहुत बड़ा ओवरहेड टैंक है जिसमें इन्फिनिट पानी है, उसमें कभी नहीं खत्म होता। उससे आपने अपने पाइप को अपने आपने फनल अप कर रखा है, वहां से आप पाइप से पानी खींच रहे हो अपनी जिंदगी में। तो सबकॉन्शियस माइंड में अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सक्सेस है, बहुत सारा पैसा है, बहुत इज्जत शोहरत है, बहुत खुशियां हैं, बहुत अच्छी सेहत है। अब आपने अपना पाइप वहां से कनेक्ट कर रखा है, तो क्या आपके पास कभी कमी हो सकती है? तो इसीलिए सबकॉन्शियस से कनेक्टेड रहो, और वहां से जो सारी पावर है जिस भी तरीके की जिंदगी में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस करने वाली, उस पावर को आप अपने अंदर फनल अप करते जाओ, क्योंकि आपने अपना पाइप कनेक्ट कर दिया है। वो पाइप कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है जब हम जिंदगी में दुखी होते हैं, या हम कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, या हम बहुत वरीड होते हैं, हमें रोना आता है, हमारे पैसे बहुत ज्यादा मतलब वो होने लग जाते हैं, वी लूज अ लॉट ऑफ मनी। इसका मतलब है कहीं कहीं पे हम वो वापस ले लो, आपके 10 लाख रुपए गए, आप रिजर्वॉयर से कनेक्ट कर लो, वहां से और आ जाएंगे। सो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना मतलब सब सॉर्टेड है, और उसके बाद इंट्यूशंस, ड्रीम्स, हंचेस, गट फीलिंग, मेरी गट फीलिंग है आई शुड बी डूइंग दिस, ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड दैट मीन्स यू कनेक्टेड टू योर सेल्फ। एंड फिर इन सब प्रोसेसेस के बाद एक आप बहुत काम और लाइक बहुत कंपोज्ड इंसान बन जाते हो, क्योंकि आपको अपनी पावर पता है, क्योंकि आपने वो कनेक्शन बिल्कुल सही जगह से स्टैब्लिश किया हुआ है। सो इसीलिए बोलते हैं लाइक थोड़ा मेडिटेट करना, या सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को। मैं भी कल सोच रही थी कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, फिर मैंने अपने सबकॉन्शियस बोलना, मैंने कहा यू आर माई ट्रैवल एजेंट, यू हैव टू कंटिन्यू बीइंग माई ट्रैवल एजेंट, and I know that anything is coming from you, it will come in the best possible way. I don't want to put my head into how, when, where, whatever, and if it is coming from you, it has to be
super successful in every which way. In fact, it will be full of magics and miracles. That's what I call all my travels. You know, I call all my travels as magics and miracles. मैंने नाम ही वही दे रखा है. सो इस तरह से जब इस तरह से कनेक्ट होके परेशान होते हैं, इसका मतलब है आपने अपना पाइप खींच लिया है, अब आप कनेक्टेड नहीं हो उस डिवाइन पावर, उस इन्फिनिट पावर के साथ. तो ये फीमेल कनेक्टेड थी जो वाइफ थी, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पूछा इन्फिनिट इंटेलिजेंस से, प्लीज रिवील टू मी दैट मिसेस एक्स, यू नो, और उनको मेरी मतलब विसिनिटी में लेके आओ सो दैट आई कैन हैंड ओवर द मनी, एंड दैट इज व्हाट. और उस फीमेल के ड्रीम में डॉक्टर जोसेफ मर्फी गए और वहां पे उन्होंने बताया मेरे पास आपके $10,000 रखे हुए हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, और सब कुछ हो गया. दिस इज हाउ इट इज. और ये उस जमाने में जब ये सब होता नहीं था, मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता था, कोई मोबाइल तो थे नहीं कि फोन करो, ढूंढ लो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं. बट इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके, कनेक्ट करके, सो आई एम एक्चुअली सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर जोसेफ मर्फी फॉर गिविंग अस दीज प्रैक्टिसेस एंड काइंड ऑफ हमको रियलाइज कराने के लिए. इस जमाने में तो कहते हैं कि अभी कलयुग है, जो भी है, कहाँ कलयुग है, बाय गॉड, मतलब इतना कोई खुशी नहीं है इस जमाने में जिसमें हम रहते हैं, लग्जरीज, कंफर्ट्स, हर तरीके से. तो ये सबसे बड़ा सतयुग तो अभी चल रहा है. So this is what it is. Time is 7:02. So thank you, Shivani, for Thank you reading so in your very much. beautiful voice. Thank you so much. So points to remember, हम कल करेंगे, wrap up करेंगे इस chapter को before we start another beautiful chapter in this book. So yeah, this is the divine power of the subconscious mind. I am also so mesmerized and so, like I'm just loving reading and practicing this book. Now I'm trying to practice it more and more. मैंने power of the subconscious के time भी इतना ज्यादा इस किताब को और telepsychic power को practice नहीं किया था जितना मैं अभी कर पा रही हूँ. Because हम भी as human beings evolve होते हैं ना, मतलब हम लोग, हमारी भी तो ग्रोथ हो रही है. अब हम मैजिक बुक पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं. इट्स बिन लाइक अभी अगले महीने 4 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो रही है, तो हमें अलग तरह से वो चीजें समझ में आ रही हैं अब. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. या, सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम टुडेज सेशन. हाँ जी, so yesterday we had quite a few sharings. Maybe we can quickly one by one share them. भारती जी को करना था, और there were couple of बेला को करना था. Yes, Yes. सरोज जी को भी करना था मैम, सरोज जी को. सरोज जी को, हाँ, उनका तो मैंने बोला अभी. Yes, प्रेमलता जी. गुड मॉर्निंग मैम. मैम आपने बताया अभी ना कि कोई भी नोट्स लेके उस पे उसी साइज का व्हाइट पेपर लेके, तो कौन से कलर के पेन से लिखना है उस पे? आप किसी भी पेन से लिख दीजिए, बस कैपिटल में लिखना है. या You can use Okay. a black one, you can use a blue one. I have used my normal blue pen जिससे मैं blessings लिखती हूँ, मैंने उसी से लिखा हुआ है. But write it in capital and feelingly and lovingly. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, Saroji. हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग जी, मैम. good morning. हंस दीजिए, आपके तो हंसने से ही सारा हाँ. एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. तभी तो लगता है सरोज जी आ गई. हाँ, ऐसा कुछ that नहीं is a है signature. या मैम. जो आप कल टैली साइकी का चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, कल उसी से रिलेटेड मेरी शेयरिंग थी. एक्चुअली मुझे पता ही अब चला कि इसको टैली साइकी कहते हैं. जो आप कल तो तभी मैंने शेयर करने का पहले कहा था कैमरा कि मैं ऑन करो, आपकी टोपी वाला चेहरा देखना है हमको. आ गई, मैं दिख गई हूँ. हाँ, इतनी गर्मी में मैं तो स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, और देखो इतनी स्लीव्स के कपड़े पहने हैं, ऐसे में भी टोपी पहन रखी है आपने. हाँ अब तो मैम, ठंडी नहीं ऐसे है, ही अभी का टेम्परेचर मैं कितना रात है? को पहन के भी सोती हूँ, पहन के भी सोती हूँ, पता है. तो ये मेरी शेयरिंग थी कि जो टेलीसाइकी आप कहते हो ना, कि मतलब ये मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो इसमें डैलस में रहते हैं पिछले 22 ईयर्स से, तो उनका कोई बेबी नहीं था. तो वो हमेशा मेरे बच्चों से आके बहुत ज्यादा वो रहते थे. तो मुझे था कि मतलब जब मेरी बेटी हुई तो उसने कहा कि इसको मुझे गोद दे दो, तो हम लोग दे नहीं पाए. तो मैं अपनी मदर इन लॉ से कनेक्टेड रहती थी,
मैंने आपको शायद पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने उनसे रिलेटेड, कि जब भी मैं उनसे कोई क्वेश्चन करती हूँ तो वो मुझे आंसर आता है। उसके लिए फिर मैंने एक बार उनको क्वेश्चन किया था, मैंने कहा इसको कब होगा, इसको बेबी मिलेगा भी कि नहीं। तो मुझे स्ट्रांग बिलीव था कि वहां से मुझे आंसर आ रहा है कि इसको जरूर, मतलब इसका बेबी होगा। और हम लोगों ने यहाँ पर गंगाराम में 3 बार ट्रायल दिए, तीनों बार फेल हुए। और उसके बाद फिर यूएस चला गया, यूएस में जाकर भी उसने ट्रायल लिया आईवीएफ का, और फिर वो भी फेल हो गया। और मैं फिर वहीं पहुंच गई, माता ये देखो ये तो हुआ ही कुछ नहीं। बट एक अंदर वो था कि आना जरूर है, अब ये नहीं पता किधर से आना है। और मतलब वो चीज मैं मेरे बिलीव से था कि जो मैंने बोला, झाई बोलती थी मैं उनको ना अपनी सास को। तो जैसे आप बोलते हो ना कि हम बहुत अच्छा कहते रहे, तो यूनिवर्स के पास कोई वो ही नहीं होता कि अच्छा करना ही करना है, पहले से ही थैंक यू बोल दो। तो वो शायद मेरी मदर इन लॉ में भी यही था कि मैं जब आई थी तो मुझे बिना किसी उसके हमेशा बोलती थी कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मेरे को अच्छे बनने की एक्टिंग होते होते मैं अच्छी हुई गई, पता नहीं कैसे। तो उनका कनेक्शन मेरे से बहुत ज्यादा था। तो एक मतलब जब लास्ट वो लोग जाने लगे, मतलब सबने गिव अप कर दिया था कि अब कुछ नहीं होगा, जब यहाँ सब यहाँ का आईवीएफ फेल हो गया, अदर का भी फेल हो गया। बट स्टिल मैं फिर उनको जाके कनेक्ट करती थी कि अब देखो अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं। तो बस फिर भी वही आता था कि नहीं होना है। तो ये लोग यूएस से इधर आए हुए थे, और वो जाने जाने से पहले जो होता है ना, यहाँ यूएस वाले पहले सारी टेस्ट वेस्ट करा लेते हैं। मेरा ब्रदर इन लॉ चले गए थे, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो इधर ही थी। तो वो चेकअप कराने के लिए गई है, वैसे ही नॉर्मल कि जाने से पहले एक बारी बॉडी चेकअप हो जाए। तो उसमें डॉक्टर ने रिवील किया कि यू आर 3 मंथ प्रेग्नेंट। तो मतलब मेरी उसका आंसर पता मैम कितने साल बाद आया, मतलब मैं लगातार 8 साल से वो कर रही थी कि तो वो इसको शायद आप टेलीसैकी कह रहे हो। तो ये चीज मैंने कल आपके चैप्टर से वो रिवील की कि कितनी बारी कुछ भी होता है ना, कोई चीज वैसे तो ठीक है मैं ऐसे ही रहती हूँ, बट कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो क्रिटिकल होती है, तब वो मैं अगर उनसे कुछ बोलती हूँ तो वो उसी टाइम मतलब सॉल्व हो जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि इसको आप तो इसलिए मैं कल कोशिश कर रही थी कि मैं इसको टेलीसाइकी बोलते हैं शायद, कि जो भी चले गए हैं उनके साथ कनेक्शन रखना इस तरह से। और वो मेरे को मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर वहां से एक आंसर आया है ना कि ये होगा, तो वो हो जाता है। पर इसके लिए टाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं है, जादू नहीं होता कि कभी उसी टाइम भी हो जाए। हो भी जाता है वैसे, कि हम लोग हरिद्वार जब जा रहे थे, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, सब नीचे खड़े हुए हैं, और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी लेके आ, पैसे तो को दिए थे कल मैंने, लूज वाली जो गड्डी दी थी ना वो ले आ फटाफट, और देर हो रही है। और मैं गुम कि मैंने कहाँ रख दिए पैसे। और मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते बोल रही हूँ, माता अब देख लो तू भी यहाँ पे है नहीं है, और मेरी तो अब जुतियां पड़ जानी, मेरे को अभी इतना लेट हो गए हैं। तो सीधा ही मैं वहां पहुंची हूँ जिस जगह पे मैंने पैसे रखे हुए थे। और जो मतलब मेरे को नॉर्मली मैं ढूंढती तो कब मिलते ही ना, वो पता नहीं कपड़ों के नीचे कहाँ घुसा के रखे थे, वो जो मैं भी भूल गई थी। वो 5 मिनट के अंदर हुआ, ऐसा हुआ। तो ऐसे टेलीसाइकी काम करती है, और मैं आपके सेशंस में आके मुझे पता चला कि ये सब चीजें भी इसका इस नाम तरह से होती है। उन माता रानी का नाम टेलीसाइकिक था। आप सही कह रहे हो आप। थैंक यू सो मच मैम। और जो आप ये जो वेट वाला आप करते हो ना, वो तो मुझे भी सच में अगर मैं कहूँ ना, तो यूनिवर्स कहता है पहले उनकी तरह खड़े होके ना एक्सरसाइज कर, नहीं तो थैंक यू सो मच मैम। और सच में आपने लाइफ चेंज की है मेरी, मैं अब क्या क्या बोलूं। अभी तो आपको बाहर जाना है इंडिया के। जाना जाना, अभी न्यूयॉर्क से कॉल आ रही है। वाह, हाउ कूल इज दैट। न्यूयॉर्क से हाँ, न्यूयॉर्क से परसों। आएगी। उससे पहले न्यूयॉर्क ही जाओगे सीधे, 7 समुंदर पार, वाह। जो बिल्कुल दूसरा एंड है। हाँ, न्यूयॉर्क से परसों आया था मुझे कुछ कनेक्शन किसी का, तो वो कह रहे थे कि वो अपने सैंपल्स वहां भेजो, आपको मतलब वो कनेक्शन मिलेगा। तो वो मुझे करना है, पर ये भी आजकल वो चल रहा है ना किसानों वाला तो मैं कर नहीं पा रही हूँ।
बस ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू मैम, हाँ थैंक हाँ, यू सो सब मच। बढ़िया है, सब बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच। इट्स थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर आपको सुनना। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस दर्शना मैडम। Good morning, everyone. First of all, thank you so much. Thank you. We are in gratefulness in all the time, all the situations. That is so good. अंदर से अपनी feelings बहुत change हो जाती है. And today is my anniversary. So I want tons and months of blessings from you. हैप्पी एनिवर्सरी। Thank वेरी you. हैप्पी एनिवर्सरी। और वो सरोजनी ने बोल दिया तो अब आपका देखना ये साल सबसे अच्छा रहेगा, विद लॉट ऑफ लव, लाफ्टर एंड टुगेदरनेस Thank एंड you. प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। सही बात है। Thank you हाई so much. वाइब्रेशनल विशेस हैं। हाँ एक्चुअली शी मेक्स द सीन ओनली लाइक दैट वो बिल्कुल लव फ्रीक्वेंसी में रहता है बिल्कुल। So Darshana ji, Thank you. enjoy your togetherness with your husband, and both of you as husband and wife serve people, you know, like itna aapke paas aa jaye that you start giving out from your life. So that is the best blessing I can give from my side. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Then we have Renu. My papa is in ICU. Please bless him. Okay. Oh, he'll be just fine. You know what to do, right? So you have to just write blessings as much as you can, like blessings as to what you want to see him as. That thank you, universe, for every cell of his body which is recovering. Thank you, universe, that his brain is working so good. Thank you so much for his healthy and strong kidneys. या जो भी जिस पर्पस से वो ICU में, मतलब जो भी पर्टिकुलर ब्लड में कुछ ऐसा है, ऑर्गन में ऑक्सीजन भी कम हो गया था, और मैं लिख रही हूँ फॉर हिज स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड परफेक्ट हेल्थ. Yeah, so just keep writing and his miraculous recovery because he's already sick though. So miraculous recovery आप इसमें ऐड कर दीजिए. बस खाएं पी अपना अच्छे से रहे. हाँ वो सब हो जाएगा. It's all part of it. हो जाएगा, बिल्कुल हो ठीक हो जाएगा। जाएंगे. उनको बिल्कुल एनवेलोप कर दो आप एक गोल्डन ह्यू के साथ में of healing and God's power and God's miraculous healing in his body. उनको बिल्कुल जब भी उनको सोचो कि एक गोल्डन बबल के अंदर है जिसमें मिरेकल्स हो रहे हैं. सो बस ये सोच सोच के आप उनको खुशियों वाला उनका चेहरा और होपोनोपोनो कीजिए, अपने लिए भी उनके लिए भी. थैंक यू दी. Yeah, thank you. Then yes, Bela, finally you can share. I saw your name yesterday, but then by the time I could call your name, I think it already logged out. Please speak. My sister has, she's in the hospital. Yeah. She's having a heart problem. Please bless her. And Yeah, what should I do? what's the name? Vijay Avasti. She's Dr. Nakul's mother. Oh yeah, right. So we've already yesterday I wrote blessings and even spoke out loud. So Okay, yeah, thank you so much. put Thank it you in so the much. admin group also. Everybody is praying. I'm already praying because Poonam ko shayad Dr. Nakul ne message diya tha, and then she forwarded that to me, and then I told the specific prayers that he should be doing as well. And I have written blessings already, and Thank I'm you so continuing. much. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. She'll be just perfect. Everything will be fine. So these impediments keep coming, but then, you know, going forward, her health is going to be beautiful. That's very clear. Thank you so much. Thank you so much. So thank God you. We bless are done today. Thank you so Thank much. you. And Thank you, enjoy the journey of Thank magic. you. Happy Thanks. Have a anniversary, great my Someone day. else who ma'am. wants to so much, share? ma'am. Heer Vikas Bhatia. Ma'am, Sorry, guys. Thank you so much, Heer ma'am. Vikas Bhatia. Please you, share ma'am. with us. No, we have another hand raised. We'll quickly take the sharing because this is a name I'm hearing for the first time. In fact, seeing for the first time. Ma'am, there are Can you two please hands. unmute Renu ji yourself and share? Two hands. Renu ji also. Oh, she's already spoken, no? Oh, sorry. I thought again. Yeah. Yeah, Heer Vikas ji, apna naam. Hello, ma'am. Yeah, Good please. morning, everyone. It's my Can you please anniversary and switch on your video? yeah, sure.
देखो इतना सुंदर सनराइज भी दिख रहा है आपके पीछे से, पेड़ पौधे, एवरीथिंग. Good view. Ma'am, it's my anniversary and I wanted your wishes. Everyone's, in Oh, fact. since when have you been coming? You should introduce yourself first. People don't know you. I mean, like. Ashima है Ma'am, क्या? हाँ जी. Acha, Ma'am, Ashima, such Ashima. Yeah. okay. Acha, this is your other name, is it? Or someone else's? Yeah, they changed after marriage, so maybe वही चल रहा है. अच्छा, नाम ही हीरा है आपका. So wish you a very, very happy anniversary and also a lot you, of sir. growth and abundance and success for your husband's business, and that you truly become like a very content mom. This is my wish for Thank you, you. Ashima. Thank you so This much. is what you need actually. Right. Thank you so And much. enjoy Keep your well, life Nalini. and togetherness and excellent health. Good physical, mental, emotional health. Everything else Thank you so follows. much. Yeah. Thanks a lot. Thank you so much. Bye bye. Bye Okay, bye-bye. bye. Bye. Thank you. Bye. Thank